میرے عزیزو، جیسے کہ ہم عہدنامہ قدیم میں سے یسایہ اس کا 53 باب اس کی اوپر غور و فکر کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے کہ ہم یسایہ کا یہ چیپٹر پھر دیکھیں، تھوڑا سا میں اور پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ پچھلے ویک میں نے اس بات سے ختم کیا کہ مستقبل میں خدا کا یہ کلام جو ہے، جو تقریباً 2700 سال پہلے 2700 ایئرز پہلے یہاں پہ رکھا گیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور کتاب کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ مستقبل جس قوم کے لیے لکھا گیا وہ کب ان پر ظاہر ہوگا، وہ کون سا موقع ہوگا۔ ایک خداوند کا بڑا ہی پاورفل نبی زکریا کے بارے میں ہم سب بہت کچھ جانتے ہیں۔ ہم اس کے باب 12 کی طرف رجوع کریں گے۔ زکریا مسیح سے 500 سال پہلے آیا، اور شاید کہہ سکتے ہیں یسایہ سے تقریباً 100 یا اس سے بھی زیادہ سال بعد وہ بابل کی اسیری میں چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے، انہوں نے ملک کو دوبارہ تعمیر کیا اور خود کو اس سرزمین پر دوبارہ قائم کیا، اور خدا نے اس نبی زکریا کو بھیجا، اور وہ مستقبل کے اس واقعہ پر ایک نظر ڈالتا ہے جو ہم یسایہ میں پڑھ رہے ہیں۔ زکریا 12 پہلی آیت میں لکھا ہے، اسرائیل کی بابت خداوند کی طرف سے بار نبوت۔ یہ اسرائیل کے فیوچر کے بارے میں ایک پیشن گوئی جو پوری ہونے والی ہے۔ خداوند جو آسمان کو تانتا اور زمین کی بنیاد ڈالتا اور انسان کے اندر اس کی روح پیدا کرتا ہے، یوں فرماتا ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام کسی انسانی ذریعہ سے نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے۔ خداوند کہتا ہے، دیکھو میں یروشلم کو ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا، اور یروشلم کے محاصرہ کے وقت یہودا کا بھی یہی حال ہوگا، اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا، اور جو اسے اٹھائیں گی سب گھائل ہوں گے، اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل جمع ہوں گی۔ خداوند یہاں مستقبل کے اس دور کی بات کر رہا ہے کہ میں یروشلم کو ایک ایسا پیالہ بنانے جا رہا ہوں جو آس پاس کے تمام لوگوں کو ایک طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دے، یعنی کہ جو یروشلم کو ٹچ کرنے کی، چھونے کی کوشش کرتے ہیں، تو خدا کا کلام کہہ رہا ہے وہ ایسا پیالہ ان کے لیے ہوگا جس طرح کے شرابی لڑکھڑاتے ہیں اور گرنے جا رہے ہیں، وہ ان سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ اور دوسری آیت کے آخر میں وہ کہتا ہے، یہودا اور یروشلم، یہودا جو بات کی گئی وہ دیہی علاقوں، یروشلم جو سینٹر ہے، مرکزی شہر ہے۔ یروشلم اور یہودا کے خلاف محاصرہ کرنے والے کون ہوں گے؟ یہ محاصرہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آیت 3 کے آخر میں، دنیا کی تمام قومیں اس کے خلاف جمع ہوں گی۔ اور عزیزو، وہ وقت قریب ہے جب پوری دنیا اسرائیل پر حملہ کرے، اور جب وہ حملہ کرنے لگیں گے تو پھر خداوند حرکت میں آئے گا، وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ اور اگر آپ آیت 6 پڑھیں تو وہ کہتا ہے، میں اس روز یہودا کے فرمان رواؤں کو لکڑیوں میں جلتی انگیٹھی اور پھولوں میں مشل کی مانند بناؤں گا، اور وہ دہنے بائیں اور ارد گرد کی سب قوموں کو کھا جائیں گے، اور اہل یروشلم پھر اپنے مقام پر یروشلم میں ہی آباد ہوں گے۔ یہ خدا کا ان کے ساتھ وعدہ ہے اور اعلان ہے کہ میں یہودا کے قبیلوں کو آگ کے برتن کی طرح بناؤں گا، اور وہ یہودا کے لوگ وہ ہیں جو دیہی علاقوں کے باہر کے انوالڈ بے دفاع علاقوں میں بستے ہیں۔ پس جب دشمن اس طرف آنا شروع ہو جائیں گے تو سب سے پہلے وہ انہی علاقوں سے ہو کر آئیں گے، اور جیسے ہی وہ ان علاقوں، دیہی علاقوں سے گزریں گے، خداوند انہیں یروشلم آنے سے پہلے یروشلم کے راستے میں ہی بسم کر دے گا۔ یہ خداوند کا کلام کہہ رہا ہے۔ اگر 8ویں آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، اس روز خداوند یروشلم کے باشندوں کی حمایت کرے گا، اور ان میں کا سب سے کمزور اس روز داؤد کی مانند ہوگا، اور داؤد کا گھرانہ خدا کی مانند، یعنی خداوند کے فرشتہ کی مانند جو ان کے آگے آگے چلتا ہو، یعنی خداوند خود یروشلم کے باشندوں کا دفاع کرے گا۔ یہ اتنے بڑے بڑے الفاظ ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ اس پر صرف ایمان جو رکھ سکتا ہے، جو بائبل مقدس کی سچائیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہر شخص داؤد کی مانند ہوگا۔ داؤد ایک بڑا سورما تھا، آپ کو یاد ہے کہ وہ ایون ساؤل سے بھی بڑا سورما ہو گیا۔ جب وہ جنگ کر کے آتا تھا تو لاکھوں میں اس کی تعریف ہوتی تھی۔ تو پھر آگے لکھا ہے، اور داؤد کا گھرانہ خدا کی مانند، یعنی خداوند کے فرشتہ کی مانند، خداوند کا فرشتہ۔ ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ خداوند کا ایک ہی فرشتہ دشمنوں کی 1,85,000 کی فوجوں کو
तबाह फना करने पर कादिर था। तो इस तरह के वाक़यात हम पढ़ते हैं कि खुदावंद आखिरी दौर में वो इसराइल की कौम के लिए क्या कुछ करने वाला है। और फिर आयत 9 में लिखा है, और मैं उस रोज यरूशलेम की सब मुखालिफ कौमों की हलाकत का कसद करूंगा। यानी खुदावंद यरूशलेम के खिलाफ आने वाली तमाम कौमों को बर्बाद करने का इरादा रखता है, इसलिए खुदावंद उन्हें आने देगा। और अगर आप एज़ेकियल 38 की बातें अगर गौर से सुने तो आपको आज के दौर की ताज़ा तरीन खबरें इस जगह पे नजर आएंगी जो आज दुनिया में हो रहा है। एज़ेकियल 38 जो अभी वाक़या होने वाला है, जो फ्यूचर में है, उसमें उन कौमों का इवन जिक्र है जो कौमें आज सरे फहरिस्त हैं और इवन उभर के नजर आ रही है। किसी वक्त ये कौमें इसराइल की दोस्त फ्रेंड थे, लेकिन कलाम मुकद्दस में जब बात आ गई कि ये उसके खिलाफ आएंगे, और जिनमें सरे फहरिस्त कौन है? रूस, ईरान और टर्की और बाकी दूसरी कौमें उनके साथ हों, स्पेशली इस्लामी मुस्लिम हुकूमतें होंगी। और अभी आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल करें, ये तीनों खास जो की कंट्रीज है, की रोल हैं जिनके, रशिया, टर्की और ईरान, ये तीनों लीडर आपको बार बार कॉन्फ्रेंस में मिलते और हाथ मिलाते नजर आए। और यहाँ इसके बारे में खुदा ने लिख दिया है। आप गौर करें कि जो मुस्लिम इस्लामी दुनिया है वो तो एक जनमी नफरत रखते हैं, यानी कि उनके ब्लड में नफरत है इसराइल के साथ। लेकिन रूस को क्या है? रूस के क्या चाहिए? रूस को इसराइल की रिचनेस, इसराइल की पावर, इसराइल का जो जितना भी माल है वो चाहिए। इसराइल बेशक इस स्मॉल कंट्री, बिल्कुल टाइनी, लेकिन इसराइल इस वक्त दुनिया की जबरदस्त ताकतवर तरीन कौम, ताकतवर तरीन मिलिट्री और हर तरह से वो रिचनेस उनके पास। अब जब जहां रूस ने गैस बंद की, वहां पर इसराइल उनको वो मुहैया कर रहा है वो चीजें, और सस्ते दामों में। हिजकिय्याह 38 में खुदावंद का कलाम कहता है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, जोज की तरफ जो माजोज की सरजमीन का रोश और मस्क और तोबल का फरमान रवा है, मुतवज्जा और उसके खिलाफ नबूवत करके है। खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, जोज, रोश और मस्क और तोबल के फरमान में मैं तेरा मुखालिफ, और मैं तुझे फिरा दूंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे और तेरे तमाम लश्कर और घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब मुसल्ला लश्कर हैं, जो फिरियां और सिपरें लिए हैं, और सब के सब तेग जन हैं, खींच निकालूंगा। और उनके साथ फारस, ये ईरान का पूरा नाम है, कूश और फूत, और जो सब के सब सिपर बरदार और खुद पोश है, चुमर और उसका तमाम लश्कर, ये बाकी इस्लामी कंट्री जो हैं जो इस तरफ रुख करेंगी। तो लिखा है, और शमाल की दूर तरफ के तजरमा और उनका तमाम लश्कर, यानी बहुत से लोग जो तेरे साथ हैं, तू तैयार हो, अपने तैयारी कर, तू और तेरी तमाम जमात जो तेरे पास फराम होगी, और तू उनका पेशवा होगा। बहुत दिनों के बाद तू याद किया जाएगा आखिरी बरसों में उस सरजमीन पर जो तलवार के गलबा से चढ़ाई गई है, और जिसके लोग बहुत सी कौमों के दरमियान से फराहम किए गए हैं। इसराइल के पहाड़ों पर जो कदीम से वीरान थे, छड़ आएगा। ये देखें, 2000 साल से तकरीबन वो वीरान थे, लेकिन अब वो बसे हुए हैं और प्रॉस्पर हैं। लेकिन वो तमाम अक़वाम से आज़ाद है और सब के सब अमनो अमान से सुकूनत करेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी की तरह आएगा, तू बादल की मानद जमीन को छुपाएगा, तू और तेरा तमाम लश्कर और बहुत से लोग तेरे साथ। गौर करें, ये बात जो भी मैंने पढ़ी है हिजकिय्याह 38:9, तू चढ़ाई करेगा और आंधी की तरह आएगा, तू बादल की मानद जमीन को छुपा लेगा, और तू और तेरा तमाम लश्कर और बहुत से लोग तेरे साथ। गौर करें कि यहाँ पर जो इसराइल पर हमला होगा, मेन बात उस पर की गई है कि वो जमीनी फोर्सेस की बात नहीं की गई, वो की गई है जो आसमानी फोर्सेस हैं। और आज गौर करें कि उस वक्त जब ये बात की गई है, उस वक्त तक किसको ख्याल था कि ये ड्रोन्स और रॉकेट्स और मिसाइल और इस तरह की सुपरसोनिक हथियार होंगे। लेकिन आज के दौर, बल्कि आज के दिनों की बात कर कि वो कौमें क्या होगी, इतने रॉकेट और इतनी ज्यादा मिसाइल के साथ, जहाजों और ड्रोन के साथ आएंगे कि एक तरह से वो इसराइल छुप जाएंगे, बादल की मानद उसको जमीन को ही छुपा लेगा। अभी अगर आप लास्ट वीक की न्यूज सुने तो क्या हुआ है कि रूस के प्रेसिडेंट ने इसराइल को धमकी दी है। क्यों? क्योंकि इसराइल और यूक्रेन में वो जो बात हो रही है, वो यूक्रेन को
आयरन डोम से मदद करना चाहता। तो पुतिन ने कहा कि अगर इसराइल ने यूक्रेन की मदद की तो फिर मैं अपने ये जदीद हथियारों से उसके बॉर्डर यानी कि सीरिया को भर दूंगा और ईरान की भी मदद करूंगा, जबकि वो पहले से ईरान की मदद कर रहा है, क्योंकि ईरान थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन उसको दे रहा है। पहले तो वो उसने इनकार किया, लेकिन अब साबित हो चुका है कि वो यूक्रेन में ईरान के बनाए हुए ड्रोन को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हम इस दौर में रह रहे हैं जिसे आप कह सकते हैं कि वी आर एट लास्ट आवर अजीजों, बिल्कुल दरवाजे पे है। अगर आप इस चीज को और ज्यादा जानना चाहते हैं डिटेल के साथ, तो इसराइल का एक यहूदी है जो कि क्रिश्चियन है, उसकी मिनिस्ट्री है बिहोल्ड इसराइल इज अ वंडरफुल सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट, और वहां से वो ऐसी जबरदस्त ताजा तरीन न्यूज दुनिया को बताता है जो आप रेडियो टीवी मीडिया पे नहीं सुनेंगे। मैंने अभी उसका लिंक भी आपको पे शेयर कर दिया, अगर आप वो देखना चाहें तो उसमें वो एक वीडियो भी है, आप ताज़ा 2 दिन पहले ही उसने शेयर किया है। अमीर सरफाती उसका नाम है और जबरदस्त खुदावंद का खादम है और दुनिया में बेशुमार कंट्रीज में जाके वो करता है और एंड टाइम के बारे में और इसराइल के बारे में वो बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है। खुदा ने बड़ी हिकमत दी है। इस तरह देखें, मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि वो जब लाइव होता है तो जिससे 5 मिनट में 5,000 लोग 5-6,000 लोग एकदम वहां पे आ जाते हैं। इस कदर खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो आप अगर चेक करना चाहें यू कैन चेक। तो अजीजों, वो वक्त बहुत करीब है जब दुनिया इसराइल के खिलाफ जमा हो जाएगी। आज जो लेटेस्ट न्यूज है ये यही है। इस वक्त इसराइल के ऊपर खतरा बहुत बढ़ चुका है। बेशक इसराइल के पास आयरन डोम जैसी सुपर जदीद एक कुव्वत है, लेकिन जो रूस के पास है सुपर सोनिक मिसाइल, उसके सामने वो भी कारामद नहीं हो सकेंगे। इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, और दुनिया आज इसराइल की मुखालफत में अरूज पर है। यूरोप में ये एंटी सेमिटिज्म बढ़ चुकी है। और जो मैं आपके साथ शेयर किया उसका टाइटल ही है विल इसराइल अटैक इन ईरान फर्स्ट। तो आप उसके ऊपर काफी डिटेल्स मिल सकती हैं, क्योंकि ईरान की बहुत ज्यादा कोशिश है कि वो सीरिया में अपने अड्डे बनाए और इसराइल उसको तबाह करता रहता है। लेकिन जब रूस उसका साथ दे रहा है और बहुत सारी कुव्वतें और ऑलमोस्ट ईरान एटमी ताकत बन चुका है, और वो सबसे पहले उनका सबसे बड़ा एम ही ये है इसराइल को तबाह करना, इसराइल को खत्म करना। और ये कि छुपी बात नहीं, ओपनली वो कहते हैं। अब YouTube पे जाके देखें, बड़ा पड़ रहा है उनकी इन बातों से। तो अब अगर हम जिक्रिया चैप्टर 12 की 10वीं आयत में पढ़ते हैं, वो कहता है और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाज़िल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने चेदा था नजर करेंगे। ये असल में मेरा पॉइंट था कि आपको उस फ्यूचर में लेके जाऊं जब वो ये वाकया जो हम यशाया 53 बाब में पढ़ते हैं ये फ्यूचर में कब होने वाला। तो हिजकिय्याह उस मंजर में हमें ले जाता है। वो कहता है कि उस वक्त जब ये सब तरफ से उन पर हमला और ये आलमी फौजें उनको हड़प करने, उनको तबाह करने, उनको समंदर में धकेलने के आएंगे, उनके बीचों बीच ये वो लम्हा है जब खुदा का फजल उन पर इस तरह होगा कि वो कहता है मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तलख काम होंगे जैसे कोई अपने पिलोठों के लिए होता है। यही वो लम्हा है, ये इसराइल का इजहार होगा। इस लम्हे में फजल और दुआ की रूह उन घंटों या दिनों में, उन लम्हों में जो कुछ भी है, खुदावंद उन पर इस तरह फजल करेगा, अपनी रूह डेल देगा कि उनके शऊर जो है बेदार हो जाएंगे। वो बात को समझेंगे जो उनसे छुपाई गई या उन पर रिवील नहीं हुई, कि वो देखते हुए ना देखेंगे, वो समझते हुए ना समझेंगे। लेकिन ये वक्त आ रहा है जब वो फजल की रूह उन पर इस तरह डेल दी जाएगी कि वो फिर पीछे नजर जब डालेंगे तो देखेंगे ये जिसको उन्होंने छेदा था, और वही खुदा कहता है कि वो मुझ पर नजर डालेंगे। मुझ पर नजर डालने का मतलब है कि मैं जो मसीह में मुतजस्सम था, उन्होंने से छेदा, उन्होंने मुझे छेदा। वो यहाँ तक कहता है कि मुझे देखेंगे जिसे उन्होंने छेदा, और उसके लिए इस तरह मातम करेंगे जैसे कोई इकलौते बेटे के लिए मातम करे। वो इस पर
फूट फूट कर जार जार रोएंगे, जैसे कोई किसी अपने पिलोठे के लिए रोता। एक ही हो इकलौता और पिलोटा। आयत 11 देखिए, यरूशलेम में बड़ा मातम होगा, पूरे मुल्क में मातम होगा। आयत 12 में आप देखें, वो खानदान, बीवियां, शोहर, अकेले, कट्टे सब रोते हैं और मातम करते हैं। कैसी अजीब बात, मुहासरे में जबकि चारों तरफ से घिरे हुए हैं तो वो खुदा मौजूद है। और उस दिन आगे अगर जिक्रिया 13 बाब में चले जाए तो उसकी पहली आयत में लिखा है, उस रोज गुनाह और नापाकी धोने को दाऊद के घराने और यरूशलेम के बशिंदों के लिए कि सोता फूट निकलेगा। वाह, ये देखें आखिरी दिनों में खुदा क्या कर रहा है, क्या होगा उस मुल्क में। एक चश्मा दाऊद के घराने और यरूशलेम के बशिंदों के गुनाह और नापाकी को साफ करने के लिए खोल दिया जाएगा, और यही इनकी निजात है। असल में मैं आपसे ये बयान करना चाहता था, शेयर करना चाहता, ये कब होगा? आखिरी दिनों में, जब इसराइल अक़वाम आलम की तरफ से बड़े पैमाने पर मुहासरे में होंगे। और उस वक्त एक और बात है कि वो एक तरह से बेदफा हो जाए, उनका दफा वो इसराइली फौज भी नहीं कर सकेगी, कोई उनके साथ नहीं खड़ा हो सकेगा। इनके पास फिर किसी जगह छुपने या पलटने की जगह नहीं होगी। इनकी वाहिद उम्मीद खुदा होगा। इनके पास सिर्फ पलटने के लिए वो मसाया होगा जिसको उन्होंने छेदा था। सिर्फ उस तरफ ही पलटेंगे, उस तरफ ही पीछे वो हिस्ट्री में पीछे देखेंगे। वो खुदावंद उनके दिलों को फेर देगा और वो उस तारीख के उस पीछे में तरफ देखेंगे, वो रिश्ते की तरफ देखेंगे जिसे उन्होंने छीदा था। और इनके इकरार और तौबा और रिपेंटेंस की उस मातम में और रोने में क्या होगा? ये यशायाह 53 बाब, ये दुख और पछतावे का रोना होगा, जैसा कि कोई अपने इकलौते बेटे के लिए मातम करे। वो खुदा के इकलौते बेटे मसीहा के लिए मातम हो। और कितने लोग होंगे? क्या ये हर यहूदी होगा? पूरी कौम होगी? इसके लिए अगर आप ज़करिया 13 बाब उसकी 8वीं आयत को देखें तो हम पढ़ते हैं, और खुदावंद फरमाता है सारे मुल्क में 2/3 कत्ल किए जाएंगे। सैड बात है, सैड चैप्टर है, लेकिन लिखा है कि 2/3 कत्ल किए जाएंगे और मरेंगे, लेकिन 1/3 बच रहेंगे। और मैं इस 1/3 को आग में डालकर चांदी की तरह साफ करूंगा और सोने की तरह ताऊंगा। वो मुझसे दुआ करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं कहूंगा ये मेरे लोग हैं, और वो कहेंगे खुदावंद ही हमारा खुदा। हालेलुया। जब कौमें आएंगी तो 2/3 मर जाएंगे, लेकिन इनमें से 1/3 रह जाएगा। बकिया जो है तीसरा हिस्सा, उसको खुदा आग के जरिए साफ करेगा। इस तरह बेहतर करूंगा जैसे चांदी को साफ किया जाए। इसकी जांच ऐसे होगी जैसे सोने की जांच की जाती है। वो मेरे नाम को पुकारेंगे और मैं उन्हें जवाब दूंगा। मैं कहूंगा वो मेरे लोग हैं, और वो कहेंगे कि खुदावंद मेरा खुदा है। यही इसराइल की निजात है। और वो निजात इसलिए आती है कि वो जिसको उन्होंने छेदा था पलट कर पीछे देखते और जान जाते हैं, पहचान जाते हैं कि यही है जिसके पाँव को उन्होंने छेदा, जिसके हाथों को उन्होंने छेदा, जिसके पहलू को उन्होंने छेदा। बीचों बीच इस हमले की हौलनाकियों के बीचों बीच फजल की रूह उन पर आती है, उनको शऊर आता है, वो मसीह की तरफ पलटते हैं। यही उनकी तौबा होगी और यही वो फिर पुकारेंगे। जो 53 चैप्टर है उनकी रिपेंटेंस होगी। सब कुछ उनके सामने शीशे की तरह अया हो, हकीकत खुल जाएगी और उनको गुनाह की निजासत से धोने के लिए पाक चश्मा खोल दिया जाएगा और वो बच जाएंगे। वो दिन आने वाला है। और उस दिन सिर्फ यही नहीं होगा, जिस दिन ये होगा उसके बाद क्या है? वह खुदावंद अपनी बादशाही कायम करने के लिए आएगा। खुदावंद कौमों को यरूशलेम के खिलाफ जंग के लिए जमा करेगा। ये आर्मगेडन हरमजदून की जंग है, जब वो तमाम बेदीनियों को तबाह कर देता। फिर उस अजीम हरमजदून की जंग में उनमें से 1/3 महफूज होंगे और वो बेड़े होंगी जिसके बारे में खुदावंद ने खुद कहा था कि वो उसकी बादशाही में दाखिल होंगे और फिर वो अपनी बादशाही को कायम करेगा। फिर हम देखते हैं आगे लिखा है 14वें बाब में ज़करिया, देख खुदावंद का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैंने सब कौमों को फराहम करूंगा कि वो यरूशलेम से जंग करे और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे, औरतें बेरुमत की जाएंगी, आधा शहर असीर में जाएगा लेकिन बाकी लोग शहर में रहेंगे। आयत 3 में लिखा है, तब खुदावंद खुरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। और ये क्या है? ये जिक्र है खुदावंद की दूसरी आमद का जिक्र है। अगर चौथी आयत देखें, 14 बाब की चौथी आयत, उस रोज कोहे ज़ैतून पर जो यरूशलेम के मशरक में वाक़या है खड़ा होगा। खुदावंद क्या होगा?
جب آسمان سے وہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ کوہ زیتون بیچ میں سے پھٹ جائے گا، اس کا پہلا قدم وہاں پہ ہوگا، اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب۔ جب اس کا پاؤں زیتون کے پہاڑ پر ہوگا، جو بالکل ہیکل کا پہاڑ جو ہے کوہ موریا کے بالکل اپوزٹ سامنے ہے، بیچ میں وہ ویلی ہے، جو اسرائیل کے ہیں وہ اس منظر کو سمجھتے ہیں، بیچ میں جو وہ قدرون کا نالا اور ساری وادی ہے، وہاں سے آپ کو ایک پینورامک ویو نظر آتا ہے، تو وہاں خداوند کھڑے ہوں گے اور ایک بڑی وادی ہو جائے گی، جہاں جب ان کا قدم اس زیتون کے پہاڑ پر لگے گا تو وہ مشرق اور مغرب میں ایک بڑی وادی ہو جائے گی، اور پھر بیچ میں سے وہ جو راستہ ہوگا وہاں سے وہ خداوند چل کر تو اس ہیکل میں داخل ہوں گے، اس پہاڑ پر جائیں گے۔ اس دن ایک اور بات ہوگی، ہم پڑھتے ہیں کہ اس دن روشنی نہیں ہوگی، روشنیاں ختم ہو جائیں گی۔ مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہم پڑھتے ہیں، یوئیل کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، سورج تاریک ہو جائے گا، اور پھر جب بالکل ڈارکنس ہوگی، دنیا کی روشنیاں تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہوں گی، جب ستارے گریں گے، بہت سی زلزلے اور طوفان آئیں گے تو الیکٹریسٹی ختم ہو جائے گی۔ دنیا کا سسٹم جو ہے، جو آج جتنی مرضی ٹیکنالوجی ہے، یہ اس کی بیس اور پاور کیا ہے؟ الیکٹریسٹی۔ اب جتنا مرضی اچھا کمپیوٹر لے آئے، جتنا مرضی پاورفل کمپیوٹر، جب الیکٹریسٹی نہ آئے تو کیا ہوگا؟ اٹس نتھنگ۔ تو جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور قدرتی جو لائٹ سے ہیں وہ بھی بجھ جائیں گی، تاریک ہو جائیں گی، تو پھر اس ساری تاریکی میں ایک بڑی بلیزنگ لائٹ میں، گریٹ لائٹ میں، بڑے جلال کے ساتھ خداوند اپنے فرشتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے خداوند نے خود میتھیو 24-25 میں بیان کیا، یہ ایک بڑا ہی یونیک منفرد دن ہوگا، اور اس دن کو کون جانتا ہے؟ صرف خدا جانتا ہے۔ نہ اس دن کو، نہ اس رات کو، کہ یہ کب آئے گا خداوند ہی جانتا ہے، کوئی آدمی اس دن یا اس گھڑی کو نہیں جانتا۔ لیکن جو سائنس ہمیں بتا رہے ہیں اس بات کا خلاصہ کر دیتی ہے، اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا، اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا۔ خداوند اس دن ساری دنیا پر راج کرے گا، اور وہی واحد راج۔ اور یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ 1000 سالہ بادشاہی کی طرف اشارہ ہے۔ وہ حکومت کرتا ہے اور بڑے شان سے حکومت کرے گا۔ حزقیل بھی اس بات کو دیکھتا ہے، حزقیل 38 میں یہی بات ہم دیکھتے ہیں۔ جب اس کو خداوند کا کلام ملتا ہے تو وہ یہی منظر وہاں پہ پیش کرتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ وہ قومیں وہاں پہ تو مڈل ایسٹ اسرائیل کے خلاف اکٹھی ہوتی ہیں، تو وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ چھا جائیں گے، آئیں گے، اور ان کے پاس پلٹنے کا اگر اسرائیل کے پاس کوئی چانس نہیں تو دوسری قوموں کو بھی پلٹنے کا چانس نہیں ہوگا۔ بڑے پیمانے پر فوجیں ہوں گی بادل کی طرح۔ لیکن آیت جیسے کہ میں نے حزقیل کی اور اس کی زکریا کی، یوئیل کی، مکاشفہ کی باتیں، یہ دانیل کی کتابیں ملا کر پڑھیں تو آپ کو سارا پتہ چل جائے۔ اس وقت بہت سارے جو ان کے علاقے صرف یروشلم کے گرد دیوار ہیں، دوسرے علاقے جو ہیں وہ انوالڈ ہیں، تو ان کی طرف وہ پہلے آئیں گے، لیکن خداوند ایسا نہیں ہونے دے گا۔ کاش کہ میں اس کی تفصیل میں جا سکتا، لیکن پھر واپس آئیں۔ وہ اس دن جب خداوند ان تمام قوموں کا انصاف کرے گا تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مقدس نام کو اپنی امت اسرائیل میں ظاہر کروں گا، اور پھر اپنے مقدس کی نام کی بے حرمتی نہ ہونے دوں گا۔ قومیں جانیں گی کہ میں خداوند اسرائیل کا قدوس ہوں۔ ایون آگے جا کے حزقیل 39 میں کہتا ہے 4 آیت میں کہ تو اسرائیل کے پہاڑوں پر اپنے سب لشکر اور اماتیوں سمیت گر جائے گا، اور میں تجھے ہر قسم کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کو دوں گا کہ وہ کھا جائے۔ وہ اسرائیل کے پہاڑوں پر گریں گے، تمام کی تمام افواج جو آئیں گی، تو یہ کون کرے گا؟ یہ اسرائیل کی پاور نہیں ہوگی، یہ اسرائیل کی فوج نہیں ہوں گے، یہ اسرائیل کا ڈرون نہیں کرے گا، یہ خدا کی طاقت، خدا خود جنگ کرے گا اور ان قوموں کو تباہ کرے گا۔ وہ اپنے مقدس نام کو اپنے لوگوں اسرائیل کے درمیان اس طرح ظاہر کرے گا، اور وہ اس کی دوبارہ نجات دیکھیں گے، وہ نجات جس کے لیے وہ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ قوموں کے درمیان اپنی بزرگی ظاہر کرے گا، اور تمام قومیں اس کی عدالت کو بھی سہیں گی اس وقت، اور خداوند اپنے جلال کو تمام قوموں میں دکھائے گا۔ حزقیل 39:22 میں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل جانیں گے کہ اس دن سے لے کر آگے کو میں ہی ان کا خداوند خدا۔ اسرائیل کا گھرانہ جان لے اس دن خداوند ان کا خدا ہوگا۔ پھر آخری جو آیت 39:29، اور میں پھر کبھی ان سے منہ نہ چھپاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنی روح بنی اسرائیل پر نازل کی ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ یہ اس لیے خدا کہ پھر منہ نہ چھپاؤں گا، کیونکہ پہلے خداوند
ने उनसे कहा था कि जब तक वो मेरे तालब ना होंगे मैं उनसे अपना मुंह छुपा लूंगा। इवन होसिया नबी जो है, होसी की किताब में देखें उसके 5वें बाब की आखिरी आयत में खुदावंद कहता है मैं रवाना हूँगा और अपने मस्कन को चला जाऊंगा जब तक वो अपने गुनाहों का इकरार करके मेरे चेहरे के तालब ना हो। तो ये वो वक्त होगा जब वो गुनाहों को ताइब करके इकरार करके खुदावंद के चेहरे के तालब होंगे, वो अपनी मुसीबत में बड़ी सरगर्मी से मेरे तालब होंगे। तो फिर खुदावंद का फजल उन पर जारी होगा और खुदावंद का रूह उन पर नाज़िल होगा और वो उसकी तरफ फिरेंगे। तो अब वो खुदावंद कहता है कि मैं अपना चेहरा उनसे मजीद नहीं छुपाऊंगा। जबरदस्त। अभी खुदा ने कह सकते हैं कि अपना चेहरा उनसे छुपा रखा है, लेकिन वो वक्त आता है कि वो अपनी फजल की रूह और दुआ की रूह, मुनाजात की रूह इस्राएल के घराने पर उंडेल दी जाएगी और ये खुदावंद का उनके लिए दावा है। ये सब बहुत करीब है अजीजों। ये एक तरह से एक ब्रेकिंग न्यूज है जो आपको दे रहा हूँ कि वी आर वेरी नियर टू दिस, सो क्लोज, इट कैन हैपन एनी टाइम। बहुत सारे खुदा के खादम जो प्रेजेंट न्यूज को लेकर वो बाइबल की ऐनक से देखते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं, उन न्यूज को जो स्पेशली इसराइल के साथ रिलेटेड है, हमारा एंड कहाँ पे, खुदावंद की आमद के नजदीक है, क्योंकि ये सब कुछ है। इसराइल एक तरह से बुल आई है, ये लोगों के टारगेट है पर है। दुश्मन और दुनिया की कुव्वतें मुसलसल इसराइल की तरफ मुतवज्जा है। उसके अपने दोस्त उसके छोड़ चुके हैं और ये खुदा का पहले से गिनती की किताबें पढ़ें, ये उनके लिए कहते कि ये कौम अकेली बसी रहेगी, अकेली, यानी कि बेशक ऑन एंड ऑफ ये होता रहता है, कोई उसका साथी बन गया कुछ, लेकिन अपने मतलब के लिए। लेकिन जब उसको मदद की जरूरत होगी कोई भी इसराइल के साथ खड़ा नहीं होगा, कोई भी। और वो वक्त होगा जब खुदावंद का, इसराइल का खुदा कहता है कि मैं अपना जलाल जाहिर करूंगा, दुनिया जानेगी कि इसराइल का खुदा जिंदा खुदा है। इवन खुदावंद कहता है मैं उनसे अपनी इबादत कराऊंगा, वो झुकेंगे। और इसराइल यशायाह 53 उसका मुकम्मल तारफ है। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर है। ये पहली चीज जो कहेंगे जब वो ताइब होंगे, इकरार करेंगे, तो सबसे पहले वो यही करेंगे कि यही बात है, हम नहीं माने। वो पैगाम क्या था वो हम, खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक हम आगे बढ़ेंगे। आए दुआ करें। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हमदो, तेरी तारीफ करते हैं। तूने मौका दिया कि हम तेरे इस बहुत ही अनमोल जेम को खोलने के काबिल, इस पर नज़र करने के काबिल हो सके और स्पेशली हम अपनी ज़िंदगियों में इसको अप्लाई करें और दूसरों के लिए नमूना बन सके, एक एग्जाम्पल बन सके। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे और उसके नाम को बेहद जलाल मिले। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।